بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل کرنا ہے تو ثبوت لائیں، پیپلز پارٹی سزائے موت کے خلاف ہے۔ ویسے بھی صدارتی معافی کا اختیار ہمارے پاس ہے۔ 9 مئی کے واقعات بغاوت کے قریب ترین تھے۔ 25 اکتوبر سے پہلے ترمیم ہوئی تو 19ویں ترمیم جیسے مشکلات نہیں ہوں گی۔ آئینی عدالت کا معاملہ ایسے نہیں چھوڑیں گے، پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ صدر سے سارے اختیارات لے کر وزیر اعظم کو دیے تو عدالت کے کیوں نہیں؟ حکومت نے ہم سے پہلے ترمیم کا آئیڈیا عدلیہ سے شیئر کر دیا، اس کے بعد مخصوص نشستیں ہی ہم سے چھینی گئیں۔ آئینی عدالت کے سربراہ چیف جسٹس فائد عیسیٰ ہوں گے یا جسٹس منصور 3 سال کے لیے ہوں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کی صحافیوں سے گفتگو، پیپلز پارٹی چیئرمین سے سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات، آئینی عدالت اور عدالتی اصلاحات سے متعلق تبادلہ خیال۔ فیصلہ دے کے کہاں چلے گئے ہیں؟ پوچھا کبھی کسی نے ان کو کیا ذرا آؤ بھی بیٹھو یہاں پہ، آپ بتائیں کہ آپ نے ایک منتخب وزیر اعظم کو 25 کروڑ کے عوام کے وزیر اعظم کو آپ نے کیسے نکال دیا؟ پوچھا کبھی آپ نے؟ نہیں پوچھا۔ بس اسی بات کا افسوس ہے۔ یہ پاکستانی عوام صاحب، یہ آپ کا بھی اس میں قصور ہے۔ بھیڑ بکریوں کی طرح سے کئی لوگ ان کے پیچھے جو چل پڑتے ہیں، ان سے پوچھیں ہمیں 50 لاکھ گھروں کا حساب تو دو، کدھر ہے وہ گھر؟ آپ ان لوگوں سے بھی پوچھیں جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے ہمارے صوبے کے لیے، کے پی کے لیے کیا کیا ہے؟ کارکردگی صفر، مار دھاڑ اور احتجاج میں نمبر 1۔ جیل میں بیٹھے شخص سے پوچھیں خیبر پختونخوا کے لیے کیا کیا؟ خیبر پختونخوا میں اسپتالوں کی سہولیات نہیں ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ بلین ٹری سونامی، 350 ڈیم اور دوسری اسکیمیں کہاں ہیں؟ لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، پوچھتے نہیں کہ 50 لاکھ گھر کہاں ہیں۔ نواز شریف سیاسی مخالفین پر برہم، انتشار کی سیاست سے کے پی اور پنجاب میں لڑائی کرانا چاہتے ہیں۔ کیا تم پنجاب اور خیبر پختونخوا کی لڑائی اور خون خرابہ چاہتے ہو؟ تمہارے عزائم کیا ہیں؟ یہ لوگ پنجاب میں آنسو گیس کے سیل لے کر آتے ہیں، پنجاب پولیس کو ڈرانے کے لیے جتھے لائے جاتے ہیں۔ جھوٹ کی سیاست اور خدمت کی سیاست میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ جیل میں ڈالنے کی بات کرتے تھے، اتنے بڑے بڑے بول مت بولو، اللہ سے معافی مانگو۔ ملک ترقی کی راہ پر گامزن تھا، مہنگائی کم تھی، گیس، بجلی، چینی، آٹا سب کچھ سستا تھا۔ جب ملک ترقی کر رہا تھا تو مجھے نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ 25 کروڑ عوام کے وزیر اعظم کو 5 جج نکال دیتے ہیں۔ مجھے نکالنے پر جواب طلب نہ کرنے پر عوام بھی قصوروار ہے۔ عوام نے کبھی کسی جج سے پوچھا کہ آپ نے منتخب وزیر اعظم کو کیسے نکال دیا؟ صدر مسلم جنون کا تقریب سے خطاب، اپنا گھر اپنی چھت اسکیم کے تحت مستحق افراد میں چیک تقسیم کیے۔ میں کسی کی گالم گلوچ کا جواب نہیں دینا چاہتی، میری تربیت ایسی نہیں ہے۔ انہوں نے ملٹیپل احتجاج کی کالز دی، بری طرح پنجاب میں وہ فیل ہوئی۔ جو اڈیالہ جیل میں بند ہے، وہ کبھی سنا ہے کہ اس نے کبھی یہ کہا ہو اپنے خیبر پختونخوا کی حکومت کو، اس نے یہ کہا ہو کہ آج سے تم نے عوام کو جو ہے وہ فری دوائی دینی ہے؟ سیاست کی اجازت مل سکتی ہے، دہشت گردی کی اجازت نہیں ملے گی کبھی بھی۔ آپ نے روزگار کے لیے خیبر پختونخوا سے یہاں آنا ہے، میرے دل کے، میرے ملک کے دروازے، میرے صوبے کے دروازے کھلیں، لیکن اگر آپ کو یہ سبق دے کے یہاں لایا جائے کہ صوبے میں جا کے آگ لگا دو اور صوبے میں جا کے پولیس کے سر پھاڑ دو، تو یہ مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے بالکل بھی۔ سیاست کی اجازت مل سکتی ہے، دہشت گردی کی نہیں۔ آپ نے تعلیم، علاج، روزگار کے لیے آنا ہے تو میرے صوبے کے دروازے کھلے ہیں۔ اگر آپ نے احتجاج، توڑ پھوڑ یا آگ لگانے کے لیے آنا ہے تو یہ ناقابل برداشت ہے۔ مریم نواز کے سیاسی حریفوں کو 2 ٹوک پیغام۔ اڈیالہ جیل میں موجود شخص کو عوام کا کوئی احساس نہیں۔ کبھی سنا ہے کہ جیل میں عوام کے لیے کوئی پیغام آیا ہو؟ جیل سے عوام کے لیے کبھی کوئی حکم نہیں، بس احتجاج کی کال آئی ہے۔ جیل سے کبھی ہیلتھ کارڈ کا پیغام نہیں آیا۔ ہمیشہ سنا کہ آگ لگا دو، مار دھاڑ کرو، پولیس والوں کے سر پھاڑ دو۔ لاہور میں انہوں نے جلسہ کیا، پورے پنجاب سے 2000 لوگ نکلے۔ پنجاب میں ان کی کال پر کوئی نہیں نکلا، کے پی سے لوگ آئے، انہوں نے اتنا ڈرامہ کیا لیکن کچھ نہیں ہوا۔ راستے میں انہوں نے گاڑیوں کو نقصان پہنچایا، پنجاب پولیس کے اہلکاروں پر حملہ کیا۔ کیا پنجاب پولیس کے اہلکاروں کی جانیں مفت میں آئی ہیں؟ ان کا پورا فوکس گالم گلوچ پر ہے۔ کسی کی گالم گلوچ کا جواب دینا میری تربیت نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے تقریب سے خطاب۔
आर्टिकल 63 नजर ثانی के सुप्रीम कोर्ट में तलखी बाहर 500 वकील खड़े हैं। देखता हूं कि पीटीआई के खिलाफ ये बेंच कैसे फैसला देता है। पीटीआई वकील तैयब मुस्तफीन काज़मी की 5 रुकन लार्जर बेंच को धमकी, इस जेंटलमैन को बाहर निकालें। चीफ जस्टिस की सिविल कपड़ों पर पुलिस एहलकारों को हिदायत। मुस्तफीन काज़मी को कमरा अदालत से निकाल दिया गया। आपके इस रवैये से जो थोड़ी बहुत हमदर्दी थी वो भी ख़त्म हो गई। जस्टिस जमाल मुंतखिल का अली जफ़र से मुकालमा। बैरिस्टर अली जफ़र साहब, ये क्या हो रहा है? आप आएँ और हमें बेइज्जत करें, हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस का अली जफ़र से मुकालमा, मेरा गुनाह ये ठहरा कि मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। साबिक चीफ जस्टिस ने कितने अरकान पार्लियामेंट को जेल भेजा। जज से बदतमीज़ी का तरीका अब आम हो चुका है। फुल कोर्ट से मुझे कोई मसला नहीं, लोगों को यहाँ मर्जी के बेंच की आदत है। क्या हमारे पास इख्तियार है कि ज़बरदस्ती किसी को पकड़ कर बेंच में लाएं? हमने वो मुकदमात भी सुने हैं कि कोई सुनना नहीं चाहता था। परवेज़ मुशर्रफ का केस भी हमने सुना। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, ये बेंच कानूनी नहीं, बेंच तश्कील देने वाली कमेटी के मेंबरान बेंच का हिस्सा हैं, वो खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं? बैरिस्टर अली जफ़र का बेंच पर एतराज़, अगर ऐसा हो तो जजिस कमेटी के मेंबरान किसी बेंच का हिस्सा ही नहीं बन सके। चीफ जस्टिस ने बेंच पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। केस की समाअत आज फिर होगी। ईरान का इसराइल पर बड़ा वार, 200 से ज़ायद मिसाइलों से तल अवीव और अस्करी अहदाफ पर हमला, शहरियों में शदीद खौफ व हरास, बैंकरों में छुप गए। ईरान ने मिसाइल हमलों की वीडियो जारी कर दी। इसराइल के 3 एयरबेस और दीगर तंशीबात को निशाना बनाया। 80% मिसाइल अहदाफ पर गिरे। इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला ले लिया। पासदारान इनकलाब, सबसे जदीद मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए। इसराइल की मदद करने वाले मुल्कों के मफादात भी निशाने पर होंगे। ईरानी जनरल, ईरान के 180 मिसाइल फ़ज़ा में मार गिराए, हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सहूनी फौज का दावा, ईरानी मिसाइल मोसाद हेडक्वार्टर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर थे। अमरीकी मीडिया, मिसाइल हमलों में F-35 तैयारों के अड्डे निवाटम एयरबेस को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया, रूसी जंगजुओं ने भी इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयों में हिस्सा लेने का पैगाम दे दिया। अरब मीडिया, बज़ाहिर ईरान का हमला नाकाम हो गया। तमाम G7 ममालिक मुत्तफिक हैं, इसराइल को जवाबी कार्रवाई का हक है। इसराइल के ईरान की जोहरी तंजीबात पर हमले की हिमायत नहीं करेंगे। ईरान को मज़ीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का अमरीकी फ़ौज को इसराइल का दिफा करने का हुक्म। कौमी सलामती के इजलास में अमरीकी सदर और नायब सदर को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी वज़ीर दिफा का इसराइली मनसब को फ़ोन। ईरान के हमलों से मुतालिक मालूमात का तबादला। ईरान ने गलती की, संगीन नताइज के लिए तैयार है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकी, इसराइल चंद रोज़ में ईरान पर जवाबी हमला कर सकता है। तेल की तंसीबात और स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी मीडिया, इसराइल ने होश के नाखून न लिए तो अगला हमला इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ दह होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का नेतन्याहू को इब्रानी ज़ुबान में सख्त पैगाम, इसराइल ने दोबारा गलती की तो पहले से ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। ईरानी सदर का वाज़ेह पैगाम, इसराइल जंगी जराइम बंद करे या रद्द-ए-अमल का सामना करने के लिए तैयार रहे। ईरान की सालमियत को नुकसान पहुँचाने की सूरत में इसराइल की सालमियत हिला कर रख देंगे। ईरानी कौम की इज़्ज़त और वक़ार पर समझौता नहीं करेंगे। ईरान ताकत का दूसरा नाम है। इसराइल ईरान के साथ तसादुम से गुरेज करे। ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान, पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में नए बाब का आगाज़। मलेशिया वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर पुरतबाक इस्तकबाल किया। मलेशिया के वज़ीर आज़म को 31 तोपों की सलामी दी गई। पाक फ़ौज की चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी पेश की। मलेशिया की आला सतह की कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारी के वफ़द की भी पाकिस्तान आमद। मेहमान वफ़द पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से मुलाकात करेगा। दोनों मुल्कों में तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। आईनी तरमीम उसी वक्त होगी जब 2/3 मेजॉरिटी होगी। किसी तरमीम का चीफ जस्टिस कादी फ़ायदीसा और जस्टिस मंसूर अली शाह से ताल्लुक़ नहीं है। आईनी तरमीम के बुनियादी निकात पर नहीं, चंद ज़ैली निकात पर मौलाना को एतराज़ है।
फजल रहमान का मौक़िफ़ है, आइनी अदालतें होनी चाहिए। मौलाना चाहते हैं कि आइनी तरमीम में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आइन से मुतसादम हो। आइंदा 2 हफ्तों में आइनी तरमीम से मुतालिक मामलात वाज़ेह हो जाएंगे। 12 जुलाई का फैसला आइन और कानून से मुतसादम हो जो आइन की शिकों को तोड़ता है। कोई भी वजह हो, आप आइनी तरमीम को नहीं छू सकते। सैनिटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। रहनुमा मुस्लिम लीग नून की सरबरा JGI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। आइनी अदालत और जजेस की तकर्री का तरीकाकार मीसाक जमहूरियत में तय है। 18वीं तरमीम में जजेस तकर्री के लिए कमेटी को उस वक्त के चीफ जस्टिस ने सबूताज किया। ऐसा निज़ाम बना दिया गया जिस पर आज तक अदलिया खुद भी मुत्तफिक नहीं हो पाई। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंट को ब्लैकमेल किया। चीफ जस्टिस ने धमकी दी, पूरी 18वीं तरमीम को उठाकर फेंक देंगे। मुराद अली शाह का दावा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मुईशत से खेल खेला गया। PTI हुकूमत ने जाते जाते जानबूझकर मुआशी तबाही के फैसले किए। मुल्क को संभालने में 2 साल लगे हैं। PTI ने गलत फैसले ठीक करने में वक्त लगा। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। 4 अक्टूबर को डी चौक में हर सूरत एहतजाज किया जाएगा। तहरीक इंसाफ डट गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 4 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज के हवाले से हिकमत अमली पर गौर। गुज़िश्ता एहतजाज में मनसूबाबंदी नाक़िस थी, इसलिए रास्ते से ही वापसी करनी पड़ी। इजलास में गुफ्तगू इस बार मखसूस और तरबियत याफ्ता दस्ता काफिलों से पहले जाएगा, मशीनरी काफिलों से आगे होगी। तमाम तैयारियों के साथ जाएंगे। तमाम काफिलों के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद क़यादत करेंगे। इजलास में फैसले। ये बाल जो बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो अब सैलरी क्लास पे है या मैन्युफैक्चरिंग के जो रेट्स हैं, ये तो अब इट विल बी देयर ड्यूरिंग द नेक्स्ट बजटरी साइकिल। तो ये जो आपकी बात है, ये दुरुस्त बात है कि ये इन द नेक्स्ट बजट, so by the time inshallah we get into March, April of next year, we should be ready to see how we can rationalize some of these rates, because we have now proven track record of increasing the tax base and increasing the tax net. To GDP हमने ठीक करना है, हमने एनर्जी जो है रिफॉर्म उसको ठीक करना है, और जो SOEs में टूटियाँ लगी हुई हैं और उसमें जो लीकेजेस हो रही हैं उसको ठीक करना है। तनख्वाहदार तबके पर बोझ अगले माली साल तक कम नहीं होगा, वज़ीर ख़ज़ाना ने वाज़ेह कर दिया। उम्मीद है कि स्टेट बैंक मज़ीद पॉलिसी रेट कम करेगा। गुज़िश्ता 1 साल में टैक्स देने वालों की तादाद दुगना हुई है। 5 लाख नए फाइलर्स शामिल हुए हैं। 50 अरब रुपए का रेवेन्यू भी आया है। हुकूमत नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन ले रही है। टैक्स टू GDP को हमने ठीक करना है। 10 IPPs के साथ बातचीत शुरू कर दी है। PIA की निजकारी के हवाले से रवा माली साल की टाइम लाइन है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। अमेरिका में समुद्री तूफान हेलियन की तबाहकारियां हलाक अफराद की तादाद 150 से तजावज़ कर गई। शुमाली और जनूबी कैरोलिना, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, वर्जीनिया में सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। अमेरिकी सदर जो बाइडन आज शुमाली कैरोलिना में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। नायब अमेरिकी सदर कमला हैरिस भी सैलाब से होने वाली तबाहकारियों का जायजा लेने जॉर्जिया जाएंगी। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में भी सैलाब और लैंड स्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। सैकड़ों घर सैलाब में बह गए। हज़ारों शहरी भी बेघर हो गए। 35 बच्चों समेत 217 अफराद लुकमा अजल बन गए। यूनिसेफ का फौरी फूड एंड रिलीफ ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान।